Karishma Mehta, and I was mentioning she's writer, photographer, and the founder and CEO of Humans of Bombay. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म जो बड़े ही यूनिक और इंस्पायरिंग स्टोरीज शोकेस करता है आम लोगों के। करिश्मा जो है अपनी साइट के थ्रू सोशल इश्यूज को उठाती है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए फंड्स भी रेज करती है। करिश्मा, आपका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ, मीटिंग हुआ। I'm here, Amir Khan is sitting and talking later. Yeah, see. We'll talk later. No, don't talk now. We are busy. बिल्कुल उन्होंने अपनी मन की बात शेयर की। Also, I was just 27 when I was given the opportunity and was damn nervous. लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही कहा गेम शो मेहता जी, I think it was a Gujarati thing. When you relax, yeah. Okay. हाँ, it was a very personal, heartfelt interview. उन्होंने अपनी सारी जो जर्नी है उनके बारे में बात की उनसे। जो आम इंसान को कठिनाई होती है उनको रिलेटेबल पॉइंट कि if the Prime Minister of our country has been through such a struggle and has arrived to becoming the Prime Minister of our country. खेल तो खत्म हो चुका है, 100 एपिसोड हो चुके हैं। And we tell stories of all kinds. The Prime Minister is one, but we tell ordinary stories of extraordinary people. And it's all about community. Whenever we tell a story, जब भी हम कहानी कहते हैं, लोग सुनते हैं and they interact. So whether it's taboo topics like we talk a lot about abuse, we talk about divorce or single mothers, single fathers, हमेशा comments में लोग कहते हैं कि ये मेरी कहानी है, or this has given me hope, or this has given me courage to walk out of a very abusive situation. So I think storytelling is very, very powerful. I think one of these stories is, and I speak about this story very often because it is one of the most hard-hitting stories we've told. It's of Anita ji. She was from a village in India. उनकी शादी काफ़ी जल्दी हो गई थी. She was 18 or 19. और at 20 she was pregnant and she delivered a girl. And at that time the husband told her कि वहाँ पे ही छोड़ के आना था. Over the next 5 or 6 years, she got pregnant 5 more times, in total 5 times, and all happened to be girls. And there was a lot of abuse, there was a lot of torture that she started going just because she was giving birth to a girl child. She was pregnant for the 6th time, and this man, this husband of hers decides कि मुझे gender check करना है while she's pregnant. So he slits open her stomach to check the gender of the baby, and as luck would have it, it was a boy. The boy didn't survive, but the mother survived. The man went to jail, and now these 6 women are left without anything, just to fend for themselves, not very educated. So we told the story on Humans of Bombay, and in 12 hours we raised 25 lakhs for these girls. And I think that is the power of storytelling. Because Anita ji and her brother called up our sub-editor Kirti Shri and said कि आपके टीम का फोटो भेजो. So Kirti Shri said, why? It seemed a bit of an odd request. And they said, क्योंकि हमने कभी भगवान नहीं देखा, हमारे लिए आप ही भगवान. And it was not us. It was thousands of people who contributed because they understood that बहुत ही injustice हुआ है. So I think that that's the power of storytelling, that's the power of community, and it's what Man Ki Baat is also about. It's about a story. So we definitely resonate. Fantastic. क्या बात है. Amir, the power of storytelling and the power of authentic stories. अगर वो स्टोरी वाकई घटित हुई है और अगर आप उस कहानी को कहो तो क्या उसका पावर आता है? नहीं, सर्टनली जब एक आप सच्चा वाकया सुनते हैं तो उसका असर यकीनन बहुत ज़्यादा गहरा होता है. जब आप कोई काल्पनिक कहानी सुन रहे हैं, कंपेयर टू दैट समथिंग
here. Just definitely it has a deeper impact. And I think Man Ki Baat has had that all right through. It is about stories, it's about people's lives, it's about putting the light on issues and pointing out people who are doing great work, which is what I think Man Ki Baat was doing. जब आप अपनी फिल्म की स्टोरी सुनते हैं जैसे तारे जमीन पे, वो सर डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू डील एंड उस वक्त तो कोई भी इस तरीके का टॉपिक लेता नहीं, तो उसके पीछे क्या थिंकिंग होती थी और कैसे आपने उस पर डिसीजन? ये तो एकदम अलग ही टॉपिक हो गया। नहीं, स्टोरी टेलिंग। हाँ, स्टोरी टेलिंग। मैं आई हैव टू से दैट मैं जब मैं कहानी सुनता हूँ तो उस वक्त जैसे आप लोग फिल्में देखते हैं, तो जब आप फिल्म देख रहे हैं आपकी जो कैफियत होती है, पहली दफा आप कोई कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जब मैं कहानी सुनता हूँ राइटर से, तो आई एम इन दैट सेम पोजीशन, मैं पहली दफा सुनता हूँ। और जब मैं उस वक्त दर्शक होता हूँ, अगर मुझे कहानी मेरे दिल को छू लेती है, मुझे हंसाती है, रुलाती है, मेरे जज्बातों को टटोलती है, मुझे कुछ कहती है, मुझसे सवाल पूछती है, इट इंगेजेस मी, मतलब जैसे आपने बोला ना चुंबक की तरह, मैग्नेट, तो एक मैग्नेट की तरह जब मुझे खींचती है, तब फिर मुझे मेरे मन में ये जज्बात आते हैं कि मुझे इसका एक हिस्सा बनना है। और शायद यही होता है मन की बात में एवरी मंथ, बिकॉज वो स्टोरीज आर रियल, स्टोरीज टच यू, एंड द ब्यूटी इज दैट वन ऑथेंटिक स्टोरी कैन टच अ मिलियन लाइव्स। यू नो, मेरे को याद आ रहा है, मैं भारत पॉजिटिव शो करता था, तो उसमें हमने एक स्टोरी एक चेंज नहीं कराया, जिन्होंने लाखों पीपल के पेड़ लगाए, उनका नाम है पीपल बाबा। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि एक जापान से टीचर है, और उन्होंने कहा कि अगर हमने पेड़ नहीं लगाए, और वो 12 साल के थे, पेड़ नहीं लगाए तो हम डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाए। तो उस वक्त वो जो बीज उस बच्चे के मन में गया, वो इतने प्रोफाउंडली चला गया कि वो ही बिकेम अ ट्री प्लांटिंग मशीन, और उन्होंने अपने 2 करोड़ पेड़ लगा दिए। तो दैट इज द पावर ऑफ द गहरा असर हुआ, कहानी का गहरा असर होता है, बिल्कुल। और यही हो रहा है हमारे देश में। वही प्रधानमंत्री, जब अपने लिस्टनर्स से बात की, तो यही मुझे एहसास हुआ कि कोई एंटरप्रेन्योर बनने की उसका ख्वाब अब सच्चा होने लगा, क्योंकि उसके अंदर वो यू गेट इंस्पायर्ड, यू हियर अ स्टोरी, you get hope. Absolutely. So it's so important for everyone, very important. Absolutely. I think मन की बात जो प्रोग्राम, उसके इतने various advantages हैं on many layers and many levels. Absolutely. एक और चीज जो मैम ने बताया, उन्होंने कहा कि जैसे ही मन की बात में मेरी स्टोरी आई, तो ऐसा लगा जैसे वेरीफाई ब्लू टिक। अब ये एक बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली, और मुझे इस बात में सोचने को मजबूर किया कि हम सब अपनी जगह ये ताकत रखते हैं कि किसी को ब्लू टिक दे दें अपने अपने लेवल में। हम अगर हमसे जो हमारे जितने फॉर्चुनेट नहीं है, अगर हमने उनके पीठ पे अपना हाथ रख दिया, तो उनके लिए वो ब्लू टिक। हमारे प्रधानमंत्री ने आज हमें एक सेट एन एग्जाम्पल बाय शोकेसिंग दोज पीपल जिनको शायद उनके पड़ोसियों ने, उनके अपनों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्होंने उनकी स्टोरी मन की बात बनाई। और अब जैसे उन्होंने कहा, एज मैम वाज सेइंग, कि अब वो लोकल लेवल पे वीआईपी बने, यू नो। तो ये जो एस्पेक्ट है, आप भी इसको बहुत फेस करते होंगे, बिकॉज एज ए सेलिब्रिटी आपको भी कॉल लेनी पड़ती है कि किस स्टोरी को लें, किसको ना लें, किसको वक्त दें, किसको ना दें। सो एज अ रीडर वो डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हैं? एक्चुअली मुझे इसमें ज्यादा एक सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं सत्य में जयते कर रहा था जी, क्योंकि वो भी इसी किस्म का एक प्रोग्राम था जब हम लोग इश्यूज की बात कर रहे थे, और मैं देश भर से लोगों को मिल रहा था, उनकी बातें हमको सुनने का मौका मिल रहा था जी। सो दैट वाज द टाइम दैट आई एक्सपीरियंस्ड इट अ लिटिल मोर, व्हिच इज सिमिलर टू दिस, more than my filmmaking hours. Absolutely, and that was an amazing program. So, अब वक्त जो है, we are about to come to the end of the session. जाते जाते मैं सभी से आपसे one by one मैं चाहूँगा कि एक मैसेज टू the 100 crore listeners of मन की बात, आपकी एक छोटी सी मैसेज टू all the listeners, to the audience of मन की बात। 100 करोड़ लोग हिंदुस्तानी मन की बात सुन चुके हैं,
एंड आमिर 20 करोड़ लोग रोज सुनते हैं रेगुलरली, so that is the audience, that's the virality of that program. या तो आपका मैसेज टू द ऑडियंस ऑफ मन की बात? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश है, स्वस्थ देश है, और उसके लिए आपको अपना सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर हूँ। खान पान पे अपने योग, फिजिकल एक्टिविटी पे, नींद पे और डिजिटल डिटॉक्स होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमको महामारियों से यदि बिछड़ना है तो हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और हमको प्रेरणा मिलती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो सशक्त और स्वस्थ हैं और एक दिनचर्या पालते हैं जिसमें वो आहार, व्यायाम, योग, ये सबकी दिनचर्या एक डिसिप्लिन में रखें, और यही डिसिप्लिन हमारे घर में हर घर आई तो सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। यही मेरी मनोकामना है कि एक स्वस्थ भारत बने और वो एक पूरे दुनिया में एक मिसाल बन सके। अच्छा, मन की बात एक बहुत अच्छा एजुकेशन और इंटरटेनमेंट का पैकेज जोड़ के, और ये जहाँ जहाँ छुआ जिस लोगों को इन्होंने, जैसे शरद जी ने कहा कि चुंबक की तरह लोग उसकी तरफ आए, मैं कहूँगी पारस पत्थर की तरह जूट का बैग है क्या? छुआ तो जिसको छू लिया वो सोने सोना बन गया। और अपने अगर उसके दिल में उतर गई वो बात जो कही गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, तो उससे जीवन के कुछ एंगल्स तो जरूर समझ गए। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया इसके 100 एपिसोड्स को दोबारा रेडियो के द्वारा 100 दिन तक लगातार चलाना चाहते हैं, ताकि वो लोग और वो बच्चे यूनिवर्सिटीज के जिन्होंने नहीं सुना किसी वजह से भी, वो उन तक ये पहुँच सके। ये हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है देश के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको समझें और लोगों तक पहुँचाएं। मैं मन की बात के जो भी हमारे सारे व्यूअर्स हैं, जो भी लिसनर्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की आबादी जो कि लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, तो अब अगर हम इसी अनुपात में हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल की आबादी भी बढ़ रही है, तो एक सहभागिता और ये सहयोग के साथ ही एक दूसरे को ले करके आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग तरक्की कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉपरेट ईच अदर, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बनाए रखिए, और जिस तरह से हम स्वच्छता के लिए अपने सेफ्टी रूल्स के लिए सेंसिटाइज हैं, उसी तरह से आप जो स्पेशली एबल्ड पीपल्स हैं उनके लिए भी सेंसिटिविटी रखिए और सेंसिटाइज होइए और एक अवेयरनेस रखिए और अवेयरनेस क्रिएट भी कीजिए। थैंक यू। I would just like to say what I always say कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो किसी की हेल्प करने की, तो प्लीज़ टेक इट। नो हेल्प इज़ टू स्मॉल and no kindness is too less. So I think that's the message. Amir, आई थिंक मन की बात कि सारे सुनने वालों को मैं सबसे पहले तो अपने तहे दिल से बहुत बहुत प्यार देना चाहूँगा और उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम एक बहुत ही खूबसूरत देश का हिस्सा हैं और हम सब एक यूनिक सफ़र में निकले हैं और इस तरह ही हमें ये सारे इश्यूज जो हैं उनसे हम सब जुड़े हुए हैं। सच बात, हम सब के बीच में कोई ना कोई तार चलता है जो हम सबको जोड़ता है।